देखो बच्चों, लेसन स्टार्ट किए थे, लेसन नंबर 12 क्लास में स्टार्ट किए थे परसों, फर्स्ट डे। तो उसमें लेसन का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो लेसन को अभी इसके अगला पार्ट देखते हैं। ओके, लेसन नंबर 12 EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते थे। देखो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने जिसका नाम था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड ने क्या किया था, एक वायर लिया था, उसमें से करंट पास किया था। राइट, करंट जब पास किया वायर में से, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। दैट नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, magnetic needle gets deflected due to this current. What this proves? Yes, current carrying conductor produces magnetic field in the surrounding region. Means E, electric field is producing magnetic field. Then we have to study whether it is possible to produce, बोलो, B से E मिल सकता है क्या? Whether it is possible to produce electric field using magnetic field. For that, one experiment we have studied, that is Faraday's experiment. What he has done, he has taken a coil, then a sensitive galvanometer is connected to the coil, and a bar magnet is kept near the coil. If both are stationary, if both are at rest, the deflection in the galvanometer is zero. All this we are taking a revision. If he take the magnet away from the coil, or if he take the magnet towards the coil, the galvanometer shows momentary deflection. इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। कब हो रहा? जब मैग्नेट मोशन में है। सिमिलरली, if the magnet is at rest and the coil is taken away from the magnet, again this will show momentary deflection. If the magnet is at rest and coil is taken towards the magnet, again this will show momentary deflection, but this time in the opposite direction. Right? That is Faraday's experiment. तो ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है और ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसको क्या नाम दिया हुआ है? इंड्यूस्ड करंट, कल बताया था मैंने, और इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो फेनोमेनन है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, which Faraday has written in his first law. See, first law, कल लिखे थे आपने. Whenever there is a change of magnetic flux in a closed circuit and induced EMF is produced in the circuit. EMF जनरेट हो रहा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. Whenever there is a change in magnetic flux, EMF is induced. Similarly, this we have also studied. Instead of coil and magnet, he has taken two coils. This first coil is called primary, second is called secondary coil. Battery is connected to the primary and galvanometer is connected to secondary. When you start the current, then galvanometer shows momentary deflection. When you stop the current, again the galvanometer shows momentary deflection in opposite direction. Same process. Why this is happening? Because see, due to the primary coil, magnetic flux associated with the secondary is changing. Right? Due to the flow of current in the primary, magnetic flux associated with the secondary is changing. So according to the principle of electromagnetic induction, EMF and current is produced in the secondary. Now, Faraday's second law that we also have studied. देखो, फैराडे ने क्या बोला? ये मैग्नेट कॉइल के नजदीक जितने स्पीड में आएगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा. मैग्नेट कॉइल के नजदीक जितना ऐसा 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 आएगा उतना कम ईएमएफ जनरेट होगा. मतलब ईएमएफ जनरेट होना काय पर डिपेंड है? दैट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. This also you have written yesterday. See, second law. The magnitude of induced EMF produced in the circuit is
directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. So rate of change of कैसा लिखे थे कल, d phi by dt, and E is the induced EMF. So E is directly proportional to d phi by dt. E is equal to any constant into d phi by dt, right? That constant if you take 1, E is equal to d phi by dt. अब यहाँ पर इसको माइनस साइन दिया हुआ है, क्यों माइनस साइन दिया हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले देखो, दिस इज नोन एज फ्लक्स रूल। इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स रूल। मतलब whenever there is change in magnetic flux, EMF is induced and EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। उसके बाद एक हेडिंग दिए थे आपने, लेंज लॉ। लेंज नाम का साइंटिस्ट है, उसने एक्चुअल में इसको निगेटिव साइन दिया। ये माइनस साइन दिख रहा है, दिस इज बाय लेंज लॉ। इंपॉर्टेंट चीजें सुनो, देखो एग्जाम में आएगा स्टेट फैराडे 2 लॉज, तो फैराडे के 2 लॉ लिखने के। अगर एग्जाम में आएगा स्टेट लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो 3 लॉ लिखना पड़ेंगे, फैराडे के 2 लॉ और एक है लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ क्या है देखो। अब देखो, when there is change in magnetic flux, EMF is generated, इतना फैराडे ने बोला। लेकिन ये EMF और ये करंट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा? What will be the direction of induced EMF or induced current? That is given by Lenz in his law called Lenz law. Okay, for determining the direction of induced current in a loop, Lenz devised a rule which goes by his name as Lenz law. अब देखो ध्यान से सुनो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। According to this rule, the direction of induced current in a circuit is, direction कैसा रहता, is such that the magnetic field produced by the induced current opposes the change in the magnetic flux that induces the current. Okay, ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल देता मैं। ये मैग्नेट जब कॉइल के नजदीक आया तो इसमें EMF और करंट जनरेट होगा। जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये भी, दिस विल आल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब ये कैसा मैग्नेट बनेगा, ये देखो इधर से साउथ पोल आ रहा है तो इधर इसका साउथ पोल रहेगा। जो मैग्नेट बनेगा उसका सपोज साउथ पोल यहाँ रहेगा, तो क्या होगा, जब ये मैग्नेट नजदीक आएगा तो ये साउथ पोल उसको रिपेल करेगा। लाइक पोल, साउथ पोल क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब ये कॉइल मैग्नेट को नजदीक आने नहीं देंगी। ये मैग्नेट नजदीक आने की वजह से यहाँ पर करंट जनरेट हुआ, यहाँ पर मैग्नेट बना। तो ये करंट जो चीज के वजह से जनरेट हुआ वही चीज को वो अपोज करेगा। मतलब मैग्नेट नजदीक आने की वजह से हुआ तो मैग्नेट को नजदीक आने नहीं देगा। अब सपोज करो आपने मैग्नेट दूर ले गए, मैग्नेट जब कॉइल से दूर ले जाएंगे फिर से इसमें करंट जनरेट होगा। लेकिन अब ये जो मैग्नेट बन रहा है वो ऐसा बिहेव करेगा कि ये हो जाएगा उसका नॉर्थ पोल। मतलब ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, दूर जाने नहीं देगा। समझ में आ रहा? मैग्नेट को नजदीक भी आने नहीं दे रहा, मैग्नेट को दूर भी जाने नहीं दे रहा। जो चीज की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ वही चीज को वो अपोज कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, the direction of induced current in a circuit is such that the magnetic field produced by the induced current, ये जो induced current की वजह से magnetic field जनरेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट बन गया, the direction in a circuit is such that the magnetic field produced by the induced current opposes the change in the magnetic flux that induces the current। करंट क्यों इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। इसलिए फैराडे ने क्या किया, ये फॉर्मूले में निगेटिव साइन दिया, E is equal to minus d phi by dt। ओके, देखो इन शॉर्ट द इंड्यूस्ड EMF tends to set up a current
the action of which opposes the change that causes it. जो चेंज की वजह से वो जनरेट हुआ वही चेंज को वो अपोज करेंगे। अब और ये अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जांपल देखो, एप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ, मोशन ऑफ ए मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप। एक वायर का लूप है, देखो एक वायर का लूप है। कंसिडर द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप। वायर के लूप के तरफ एक मैग्नेट आप लेके आ रहे, मैग्नेटिक डायपोल, इसमें दो पोल रहते, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नजदीक लेके आ रहे आप कॉइल के, नॉर्थ पोल पहले नजदीक आ रहा, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द लूप, करंट इज इंड्यूस इन द लूप, दिस करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक डायपोल। जब ये मैग्नेट कॉइल के नजदीक आ रहा, व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this loop will change. So according to electromagnetic induction, current will flow through this loop. इसमें से करंट फ्लो होगा और दिस विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, ये भी एक बड़ा मैग्नेटिक डायपोल जैसा बन जाएगा। लेकिन ये कैसा बनेगा, तो देखो नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा, तो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल का नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ साउथ पोल बनेगा। देखो यहाँ भी बता रहा है, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल रिपल्शन होगा, दिस लूप विल नॉट अलाउ दिस मैग्नेट टू कम टुवर्ड्स इट। हालांकि ये मैग्नेट नीचे का काय की वजह से बना, ये ऊपर का मैग्नेट आ रहा इसलिए बना, तो उसको आने नहीं देगा। ओके, एज द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द लूप, the current is produced in the loop, this current produces a magnetic dipole. The dipole is oriented in such a way that it opposes the motion of the magnet. ये मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, thus north pole of the loop must face the north pole of the magnet. दोनों नॉर्थ पोल फेस कर रहे हैं, इसके मोशन को अपोज कर रहे हैं, ठीक है, लेंस लॉ के हिसाब से। The curl right hand rule for the magnetic field will provide the direction of induced current. Direction of induced current ये केस में रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो मैग्नेट सपोज दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जाएगा, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this loop will change, current will induce in this loop, this will behave like a magnet, but this time south pole will be facing north pole. ये बन जाएगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, दूर जाने नहीं देगा। समझ में आ रहा, ये तो लिखा, इफ द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द लूप, करंट विल अगेन बी इंड्यूस्ड इन द लूप सच वे दैट डायपोल ऑफ द लूप अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर एंड द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये केस में करंट कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लेंस लॉ का बेस्ट एग्जांपल है जिसपे से आपको लॉ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो लेंस लॉ के बारे में और एक क्वेश्चन आता, लेंस लॉ इज इन गुड अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी आप कभी भी जनरेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ क्या होता, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो लेंस लॉ बराबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करता, कैसा करता, देखो द केस ऑफ द इंड्यूस करंट में भी, वायर में करंट इंड्यूस होने के दो तरीके देखे अपन ने। लेसन नंबर 10 था अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें क्या था, कैसा करंट इंड्यूस होता, देखो करंट इज इंड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक वायर मूव हो रही है तो उसमें करंट इंड्यूस होता। और दूसरा इंड्यूस होने का रीजन लेसन नंबर 12 में देखे थे, स्क्रीन में रेड ब्लैक मत करो, नहीं समझ में आ रहा तो अभी चैन से बैठो, ठीक है। करंट इंड्यूस होने का दूसरा रीजन था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्टेशनरी सर्किट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फर्स्ट केस में, in the first case the direction of induced current in the moving conductor opposes the motion, फर्स्ट केस में भी मोशन को अपोज कर रहा, सेकंड केस में भी
जो चीज की वजह से जनरेट हुआ, कई की वजह से जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वो जनरेट हुआ, वो सेकंड केस में भी वो रीजन को, वो कॉज को वो अपोज कर रहा। इन द सेकंड केस ऑल्सो द करंट इज सेट अप इन द मैग्नेटिक फील्ड within the area bounded by the circuit is opposite to the original magnetic field. If this field is increasing, अगर फील्ड बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट रहेगा, अगर फील्ड कम हो रहा है तो उसके सेम डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज अपोज्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। इसलिए क्या हो रहा, लेंज लॉ इज इन गुड अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ फॉलोज डायरेक्टली from the conservation of energy. The induced current in the circuit once started flowing in the loop would keep increasing. देखो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, एक मिनट देखो, कौन इसको इनोवेट करा, उसको डिसेबल कर देगा। लेंज लॉ अगर नहीं रहता, मतलब देखो मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसमें करंट इंड्यूस होगा, अगर इसको अपोज नहीं करेगा तो मैग्नेट और नजदीक आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहेगा और करंट अपने आप इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब एनर्जी अपने आप जनरेट हो रही है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से एनर्जी कभी भी अपने आप इंक्रीज नहीं होती, एनर्जी जनरेट नहीं होती। वही उसने क्या बताया, the induced current in the circuit once start flowing in the loop would keep on increasing indefinitely, इसकी वजह से वो हीट भी होगी। This will violate the law of conservation of energy, मतलब लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बराबर फॉलो कर रहा है। वैसा ही लेसन नंबर 10 में जो देखे थे वो हिसाब से द अपोजिंग सेंस ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ए जनरल स्टेटमेंट ऑफ Len's law. Every effect of production acts in opposite to the case which produces it. ठीक है, अब देखो ये जो था लेंज लॉ, यहाँ तक अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 3 लॉ स्टडी किए, फैराडे के 2 लॉ और डायरेक्शन दिया जिसने वो 3rd लॉ लेंज लॉ। अब अपने को एक छोटा सा पॉइंट स्टडी करना है, फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में कल बताया था, पढ़ाते टाइम, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। अब उसका फॉर्मूला कैसा रहता वो देखेंगे। ठीक, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डीए, एक छोटा सा एरिया कंसीडर करो। ये कैसा ट्रेस कर रहे हैं, देखो ये डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, सी जो डायरेक्शन, सी जो एरो दिखा रहा है, a direction is assigned to this element such that if the curve bounding the area is traversed in the direction of arrow, arrow के डायरेक्शन में जाओ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ। इसको और एक डायरेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू। एक स्क्रू ऐसा नीचे से लगाओ, देखो एक स्क्रू ऐसा नीचे से ऊपर घुमाएंगे राइट साइड में तो स्क्रू ऊपर ऊपर रहेगा, राइट हैंडेड स्क्रू का डायरेक्शन है। अब सपोज द एलिमेंट ऑफ एरिया डीए इज सिचुएटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड बी में सिचुएटेड दिस एरिया, तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा, देखो परसों कल मैंने क्लास में डायग्राम बना के बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल्स में से जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रहे वो एक एरिया में से पास हो रहे, वो एरिया को जितने लाइंस पास हो रहे उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये है स्केलर क्वांटिटी, ये है स्केलर प्रोडक्ट, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और डीए क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एरिया। ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो आएगा बी डी ए कॉस थीटा, देखो बी डी ए कॉस थीटा, where theta is, this is called flux of B through
द एरिया DA वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड DA। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए था, इसको जब जनरलाइज करेंगे बड़े एरिया के लिए लेंगे तो अपने को सबका टोटल मतलब सबका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, फाई मिलेगा। देखो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई और राइट साइड का इंटीग्रेशन लेंगे बी डॉट डी ए, दिस इज इन इंटीग्रेशन एरिया एस, पूरा ये टोटल एरिया एस है, इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर टोटल एरिया एस, दिस बी डॉट डी ए। अब ये बी हर तरफ चेंज हो सकता, कैसा चेंज होगा, बी एट एवरी पॉइंट विल चेंज विथ टाइम। अगर बी चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, phi is equal to integration is b is the function of time, b into bracket t dot dA. अब Faraday's discovery was that d phi by dt means rate of change of magnetic flux is related to the work done to take a unit positive charge around the contour C in the reverse direction. So work done हो रहा है, work done to bring unit positive charge is nothing but the EMF induced. This work done is just the EMF induced. तो यहाँ पर फैराडे लॉ अगर यूज करेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, उसमें फाई का वैल्यू डालो डी डी टी ऑफ बी टी इंटू डी ए। दिस इज द इम्पोर्टेंट इक्वेशन दैट वी आर स्टडी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बोलो। अब एक आखिरी पॉइंट अपने को देखने का है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगेन यूजिंग लेंज लॉ। अब दो लॉ एक साथ अपने को यूज करने के जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल वेरीफाई होगा। ठीक, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फर्स्ट में दो केसेस है, पहला ट्रांसलेशनल देखेंगे, दूसरा रोटेशनल मोशन देखेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए कंडक्टर, देखो एक डायग्राम बनी हुई, एक मेटल का ऐसा लूप बना हुआ है, देखो ए बी सी डी, ये जो लूप है ब्लैक कलर का ये फिक्स है, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसके ऊपर ये जो रॉड है या जो ये वायर है कंडक्टर, ये ऐसा आगे पीछे स्लाइड हो सकता। सेम टाइप का डायग्राम सरफेस टेंशन में देखे थे, ठीक है, सरफेस टेंशन में देखे थे, वैसा ही ये सी, ये बीसी वायर है, ये आगे पीछे मूव हो सकती। तो ऐसा एक रेक्टेंगुलर वायर का फ्रेम कहाँ रखा हुआ है, दिस इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो जैसे दिख रहे हैं ये सर्कल बने हुए, अंदर प्लस साइन बना हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये जो फ्रेम है ये इसका ये थिकनेस ये है लेंथ एल, ये है एक्स, तो ये इतना एरिया आएगा, इतना एरिया आएगा एल इंटू एक्स, ठीक है, वही लिखा हुआ है। देखो कंसीडर रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD, ये सब नोट्स है, ये आपको पढ़ के याद करके एग्जाम में लिखने का। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD of area length into breadth L into x is situated in a constant magnetic field B. As the side BC is moved out, ये BC मूवेबल है, इसको बाहर मूव करो V इतने वेलोसिटी से। अब जब ये मूव होगा, ध्यान से सुनो, ये जब मूव होगा व्हाट विल हैपन, टू थिंग्स विल हैपन, magnetic flux associated with this conductor will change according to the principle of EMI. According to Faraday's law, what will happen, EMF and current will be induced in this conductor, इसमें EMF जनरेट होगा। देखो the flux through the loop increases with time according to the flux rule, induced EMF is equal to rate of flux through the circuit। ये इंड्यूस EMF, इसमें EMF इंड्यूस होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, फर्स्ट थिंग। अब ये कितना होगा वो पहले केस में फाइंड करेंगे। देखो वी नो दैट फाई इज इक्वल टू बी इंटू एल एक्स, फाई का फॉर्मूला रहता मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड है बी, एरिया है एल इंटू एक्स, तो फाई मिला बी एल एक्स।
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, या डायरेक्टली फैराडेज लॉ यूज करो। डायरेक्शन मतलब पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड लो। फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू डालो, डी डी टी ऑफ बी एल एक्स, बी और एल ब्रैकेट के बाहर लो, डेरिवेटिव के बाहर, तो अंदर बचा डी एक्स बाय डी टी। अब डी एक्स बाय डी टी रहता v, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाय डी टी की जगह मैंने लिया v, ये एक फॉर्मूला मिला, समझ में आया? ये अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब दूसरा लॉ यूज करेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज क्या में था ये? लेसन नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। क्या था? एक कंडक्टर है, उसमें से ये कंडक्टर में से करंट फ्लो रहा है। कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर भी फोर्स एक्ट होगा, लॉरेंट्ज फोर्स। कितना फोर्स एक्ट होगा? A charge Q which is carried along by the moving wire BC experience Lorentz force। देखो फॉर्मूला आपको याद होगा तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। F है लॉरेंट्ज फोर्स, Q है इसमें से BC में से फ्लो होने वाला चार्ज Q है, V वेलोसिटी एंड क्रॉस प्रोडक्ट विथ B मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये लॉ था लेसन नंबर 10 में अपने डिटेल में स्टडी किए थे। अब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करो, वो आएगा वी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी। ये वी को भी और बी को दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब वो बी सी के डायरेक्शन में, पैरेलल टू द वायर बी सी। ठीक है, उसके बाद व्हेन द चार्ज Q मूव एट डिस्टेंस L, देखो ये चार्ज Q यहाँ बताया फिर से, ये L इतना डिस्टेंस है, इसमें चार्ज मूव हो रहा है, तो क्या होगा? वर्क इज डन बाय द फोर्स, फोर्स एक्ट हो रहा है, वो वर्क डन करेगा। वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट है L। F का वैल्यू इधर वापस डालो, जब F का वैल्यू डालेंगे तो Q V B साइन थीटा, देखो ये वैसा क्या वैसा, Q V B साइन थीटा इंटू दिस L, L विल बी एज इट इज, तो थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड V। अब अपने को फाइंड करना है EMF। देखो EMF दो तरीके से फाइंड कर रहे हैं, पहला लेसन नंबर 12 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फ्लक्स रूल और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, E मिला BLV। अब दूसरी चीज से दूसरे केस में फाइंड कर रहे हैं, लॉरेंट्ज फोर्स फाइंड करें, लॉरेंट्ज फोर्स से वर्क डन फाइंड करें, W Q V sin थीटा इनटू L। अब वर्क डन से मिलेगा EMF, ये भी हो गया आपका। देखो वर्क डन से EMF कैसा मिलता? EMF इज वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, EMF जनरेटेड इज वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। देखो ये W का वैल्यू कौन सा? W Q V B साइन थीटा इंटू L, ये डालो इसमें, Q V B साइन थीटा डॉट L, ये डाले वैल्यू ऑफ W डिवाइडेड बाय Q एज इट इज। ये Q और ये Q कैंसिल होंगे तो क्या बचा? E इज इक्वल टू V इंटू वी बी साइन थीटा इंटू L। अब थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। फॉर मैक्सिमम EMF साइन थीटा इज 1। मैक्सिमम EMF कब मिलेगा? व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो यहाँ बचा BLV। E max theta, E max maximum EMF is BLV। देखो दो इक्वेशन मिले आपको, E is BLV अगेन इस E is BLV। दोनों फॉर्मूले, दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आए, एग्जैक्टली सिमिलर आए, बराबर। मतलब क्या हो रहा? अपना इस पे से
जो ईएमआई का रूल है या तो जो फैराडे का रूल है वो भी वेरीफाई हो जाना, ठीक है। In general, it can be proved that for any circuit, the induced EMF is the time derivative of flux. EMF कैसा मिलता? E is equal to minus d phi by dt. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब कुछ डिफिकल्टी हुई तो पूछ लो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे। कल आप लोग कॉलेज में आने वाले, कल कॉलेज है अपना, कल कॉलेज में आने वाले, ठीक है। तो बोलो कुछ पूछना होगा तो ठीक है, तो इसके आगे। सर प्रैक्टिकल का टाइम क्या है? मुस्कान, कल का टाइम आपको क्लास में बोले थे, व्हाट्सएप पे भी डाले, कल जुम्मा है, कल कॉलेज में नो सर, प्रैक्टिकल का टाइम। अच्छा ठीक है, बोलता मैं। कल जुम्मा है, कल अपना कॉलेज है 3:15 बजे से 5 बजे तक। रेगुलर जैसे पीरियड होते वैसे 5 पीरियड होंगे, और मंडे से प्रैक्टिकल होगा। देखो दोनों आपके जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप के ग्रुप, सब पे प्रैक्टिकल का टाइम डाला हुआ है। प्रैक्टिकल 1:30 बजे से शुरू होगा और प्रैक्टिकल 3:30 बजे तक खत्म होगा। बैचेस बनाए हुए देखिएगा आपने, देखो ए डिवीजन में 2 बैच है, 12 साइंस ए में 2 बैच है, रोल नंबर 1 से 40 ए बैच, फिर 41 से 80 बी बैच। 12 साइंस बी में 2 बैच है, बैच देखो 12 साइंस ए में 2 बैच है, ए और बी। 12 साइंस बी में 2 बैच है, सी और डी। 12 साइंस सी में 2 बैच है, ई और एफ। हर बैच में 40 स्टूडेंट्स है, और उसका टाइम टेबल ग्रुप पे डाला हुआ है। ए बैच आएंगी फिजिक्स को, बी बैच आएंगी केमिस्ट्री को, उसके बाद आगे सर्कुलेट होंगी, रोटेट होंगी, कैसा होंगी वो सब बराबर आपने देख लेने का है। आप जब कॉलेज में आएंगे 1:30 बजे, तो क्लास में जाके नहीं बैठने का, सीधा सीधा लैब में आने का। रोल नंबर 1 से 40 फिजिक्स लैब में आओ, और उसके आगे केमिस्ट्री लैब में जाओ। और एक इम्पोर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल की बुक मंगाया था मैंने, प्रैक्टिकल की बुक 1-2 दिन में खरीद लो। मंडे के दिन बुक के साथ आएंगे तो लैब में आने का, मैं तो घर पे भेज दूंगा, मैं बाहर खड़े करूंगा। लैब बुक का फोटो भेजा था जर्नल का, जिसमें आपको लिखना भी है, हैंड बुक भी है, ठीक है। वो बुक खरीद के मंडे के दिन आना है, ठीक है। टाइम खत्म हो रहा है, ये अपने आप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।